Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss with you regulation of heart pumping. What is heart pumping? Heart pumping is the contractile ability of heart to pump blood to body. Normally 4 to 6 liter of blood is being pumped by heart. How this heart pumping is regulated? This heart pumping is regulated by two factors, intrinsic factors and extrinsic factors. Intrinsic word shows that these factors are present within the heart and they are responsible for alternating heart pumping. इंट्रिंसिक फैक्टर में वेनस रिटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. व्हाट इज वेनस रिटर्न? वेनस रिटर्न इज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच रिटर्न टू हार्ट थ्रू वेन्स. वेन्स जितना भी ब्लड हार्ट को रिटर्न करिए, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है हार्ट में वो चेंज हो रहा है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेंज हो रही है. जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेंज होगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ this will alternate heart pumping, and this is explained by Frank-Starling mechanism, which we are going to discuss in detail. Second factor is extrinsic factor. Extrinsic word shows that these factors are not within the heart, but these factors are originated outside the heart. And the most important intrinsic factor is autonomic nervous system. Autonomic nervous system consists of two systems, parasympathetic system and sympathetic system. Parasympathetic system will alternate the heart pumping, it will decrease it. Sympathetic system will alternate the heart pumping and it will increase the contractility of heart, which we are going to discuss in detail. Power contraction of heart is more in ventricles. It means the contractility is more seen in ventricles rather than atria, because ventricles का काम है blood को aorta में pump करना. ventricles का major role है. That's why जो contraction है वो ज़्यादा ventricles में dominate करती है, and we will study and these factors more in ventricles. Now we will discuss about intrinsic factors, and in this intrinsic factor the most important mechanism is Frank-Starling mechanism. Venous return is done, blood is returned to heart through veins. Now the cardiac muscle will stretch because blood उनके अंदर enter हो गया. They will stretch to store that blood. As a result of this stretching, जब muscle stretch हो रहा है तो muscle fibers also stretch. Muscle fibers are made up of filaments जिनको हम actin और myosin कहते हैं. ये actin and myosin की length में भी increase होगा. As a result of their increase in length, they have the chance to overlap each other. They will overlap each other, and when they overlap each other, the contraction will occur. And we say that contractility of the heart increases, which is basically heart pumping. This is all observed more in ventricles, as I have already told you that ventricles show more powerful contraction. But what happens if atria also undergo the same procedure? If atria also contract in the same manner, then the heart rate can increase up to 10 to 20%. It means heart pumping can further enhance. It can reach to its maximum range. Now this Frank-Starling mechanism can also be shown with the help of graph. There are two graphs for two portions, right portion and left portion. Right atrial pressure increases. It will increase when blood enter in atria. This increase in pressure will cause the blood to enter in ventricle. Now the blood enter in ventricle. Due to this blood entering, pressure of blood also increases in ventricle, but the volume of blood also increases, and we see with the help of this graph. There it's shown that atrial pressure is gradually increases from 10, 15, 20, and in the same manner the graph is also increasing. It is about to touch that 4. So same is the case with left portion. In the left portion, we seen that when atrial pressure of the left side increases, this will increase the left ventricular pressure also, and the left ventricular stroke volume also increases. And we can see this with the help of graph, that the x-axis increases, which will increasing the y-axis.
इट मीन्स जब एट्रियल प्रेशर इन्हांस होगा तो वेंट्रिकुलर स्टॉक वॉल्यूम इन्हांस होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इन्हांस होगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज हार्ट पंपिंग. सो हार्ट पंपिंग इन्हांस हो जाएगी. नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट topic, which is extrinsic factor. And in extrinsic factor, most important role is being played by autonomic nervous system, which has further two divisions, sympathetic control and parasympathetic control. Whenever a sympathetic nerve is activated, it will increase that pressure. It will increase that pressure and ejection pressure, and the heart will contract more strongly, and the cardiac output can increase up to 100% because it is the fight or flight response, and it will increase that heart pumping. Second control is done by parasympathetic control. Parasympathetic system activation can even stop heartbeat. Now we have considered heartbeat, not heart pumping. Why? The reason is that parasympathetic nerves are most frequently in atria. एट्रिया में पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ज़्यादा होती है, वेंट्रिकल्स में पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कम होती हैं. इसका मतलब ये है कि एट्रिया पे इनका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और एट्रिया में पेस मेकर एंड नोड्स प्रेजेंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो कि फर्दर हार्ट बीट को इफेक्ट करते हैं. तो जब हार्ट बीट, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन होगी तो जो हार्ट बीट है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, बिकॉज उसकी ओरिजिनेशन एट्रिया से होनी थी. अब वो स्टॉप भी हो सकती है, लेकिन हार्ट इस चीज़ से स्केप कर जाता है और उसकी जो बीटिंग है वो 20 से 40 बीट्स पर मिनट हो जाती है. It means whenever a parasympathetic system is activated, it will more affect atria, और atria is concerned with heart beating more. That's why heart beating पे effect होगा, वो 20 से 40 beats per minute reduce हो जाएगी. Contraction पर भी effect होगा. It doesn't mean कि contraction will not affect at all. Contraction will also affected. लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पे इसका इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक सिस्टम. सिंपैथेटिक सिस्टम का वेंट्रिकल पर इफेक्ट ज़्यादा है. पैरासिम्पैथेटिक क्योंकि नर्व्स ही वेंट्रिकल्स में कम है तो उनका इफेक्ट वेंट्रिकल्स में कम होगा. दैट्स वाई यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 20 से 30% डिक्रीज हो जाती है. नाउ दिस इफेक्ट कैन ऑल्सो बी शोन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. इन दिस ग्राफ वाई एक्सिस पे कार्डिक आउटपुट है और एक्स एक्सिस पर एट्रियल प्रेशर है. व्हेन एट्रियल प्रेशर इज इंक्रीजिंग, पैरासिम्पैथेटिक में ये हो रहा है कि ये ग्राफ बिलो ही रह रहा है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा इन्हांस नहीं हो रही क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट हुई है, हार्ट बीट इफेक्ट हुई है. दैट्स वाई पैरासिम्पैथेटिक में कार्डिक आउटपुट ज़्यादा इन्हांस नहीं हो रही. जैसे ही सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हुई, वी कैन सी दैट एट्रियल प्रेशर इज इंक्रीजिंग, लेकिन सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो भी इन्हांस हो गया, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हमेशा इजेक्शन प्रेशर को इन्हांस करेगी, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट पंपिंग को इन्हांस करेगी, जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है, जो ब्लड की पंपिंग है वो ज़्यादा होगी और मोर ब्लड जो है वो फर्दर आगे फ्लो करेगा एओर्टा की तरफ. सो दीज आर components of autonomic nervous system which are affecting heart pumping, but there are some other extrinsic factors which also affect heart pumping, and these are potassium and calcium ions. Now what is their concept? We have already discussed in resting membrane potential, potassium concentration is more inside the cell than outside. पोटेशियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कम होते हैं और इनसाइड ज़्यादा होते हैं इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. लेकिन अगर किसी भी एबनॉर्मैलिटी की वजह से पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तो अचीव नहीं होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं अचीव होगी, और जो मेम्ब्रेन की एक्शन पोटेंशियल वाला फिनोमिना है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. डिक्रीज मीन रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होती है. क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा होते हैं. सोडियम को ज़्यादा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है क्योंकि दैट्स वाई ये कंसीडर किया जाता है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि सोडियम आउटसाइड ज़्यादा होता है, पोटेशियम इनसाइड ज़्यादा होते हैं. अब पोटेशियम के इनसाइड ज़्यादा होने की वजह से इनसाइड नेगेटिव होता है, क्योंकि सोडियम आउटसाइड उसका जो साइन है वो पोटेशियम को मैच नहीं कर रहा होता, बल्कि सोडियम आउटसाइड पोटेशियम से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी का फैक्टर इन्हांस होता है.
नॉर्मल स्टेज में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोटेशियम जो है वो इनसाइड ज़्यादा होते हैं और सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं। अब जब पोटेशियम रेस्टिंग मेम्ब्रेन में इनसाइड ज़्यादा होते हैं तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल नेगेटिव रखते हैं। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, पोटेशियम बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो गया, अब पोटेशियम को तो रेस्टिंग स्टेट में अंदर ज़्यादा होना चाहिए था ताकि नेगेटिविटी प्रिवेल रहे और पोलराइजेशन का फैक्टर मेंटेन रहे, लेकिन अब पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है तो जो पोलैरिटी है वो तो डिस्टर्ब हो गई। डेफिनेटली अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव नहीं रहेगा, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इस वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी अचीव नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं अचीव हो सकेगा? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल की अचीविंग के लिए इट इज़ नेसेसरी कि पोटेशियम जो है वो इनसाइड ऑफ द सेल से आउटसाइड जाए और सोडियम आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड आए। लेकिन जब पोटेशियम बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो पोटेशियम तो डेफिनेटली अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा और एक्शन पोटेंशियल जो कि जनरेट होना था बिकॉज ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ पोटेशियम और सोडियम आयंस वो नहीं होगा। जब पोटेशियम और सोडियम आयंस का इंटरचेंज ही नहीं होगा तो वी कैन से कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो देर से अचीव होगा। जब एक्शन पोटेंशियल देर से अचीव होगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस उस तरह ट्रैवल नहीं करेंगी, हार्ट की जो कंट्रैक्शन है, जो पंपिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और वी कैन से कि मोर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम विल डिक्रीज द हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नेक्स्ट आयंस विच कम इज कैल्शियम आयंस। अब कैल्शियम आयंस अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? कैल्शियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा है। अब ये कैल्शियम आयंस जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना होता है तो कैल्शियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, तो और कैल्शियम तो बाहर ज़्यादा है तो कैल्शियम तो आराम से स्लो कैल्शियम चैनल से अंदर की तरफ आ जाएंगे, सेल के अंदर आ गए। अब कैल्शियम अंदर आ गए, इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, जब वो अंदर आएंगे सेल के तो डेफिनेटली वो जो कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना जो उन्होंने जनरेट करना था, अब ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम अंदर आएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उस कॉन्ट्रैक्शन को हम स्पैसेटिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। स्पैसेटिक कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन है जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैल्शियम अब आउटसाइड बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से वो ह्यूज अमाउंट में सेल में एंटर हो रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हार्ट पंपिंग इंक्रीज हो गई है। सो दिस इज हाउ potassium and calcium ions affect heart pumping. Next is effect of temperature. If temperature is increased during fever, during exercise, what would happen? It will increase that acceleration of these ions. इन ions की acceleration increase हो जाएगी. These ions will started to move फर्दर एंड फर्दर, ये फास्टर एंड फास्टर मूव करेंगे। इनकी फास्टर एंड फास्टर मूवमेंट्स की वजह से जो एक्टिविटी होनी है वो भी क्विक होगी, एक्शन पोटेंशियल भी क्विकली होगा, सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, जिसकी वजह से जो हार्ट पंपिंग है वो इन्हांस हो जाएगी। और जब टेम्परेचर नॉर्मल स्टेट में होगा तो हार्ट पंपिंग नॉर्मल रहेगी बिकॉज इनकी जो एक्सेलरेशन और इनकी जो वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम इज हार्मोन। हार्मोन में मोस्टली एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, दे हैव द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। ये हार्ट पंपिंग को इन्हांस करते हैं। ये जो है वो उस वक्त इन्हांस होंगे जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा, दे जनरेटेड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर जनरेशन इसमें होगा ये कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम की तरफ अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे और हार्ट पंपिंग को इन्हांस कर देंगे। देन देयर इज एट्रियल प्रेशर। एट्रियल प्रेशर को हम लोड भी कहते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स अब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके एओर्टा में ब्लड पंप कर दिया, अब एओर्टा में प्रेशर इंक्रीज हो गया। एओर्टा में प्रेशर इंक्रीज होने का ये मतलब नहीं है कि अब एओर्टा में फर्दर ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड तब तक जाता रहेगा जब तक हार्ट अपना वो तमाम ब्लड एओर्टा में ट्रांसफ़र ना कर दे जो उसने वेनस रिटर्न से रिसीव किया था, बट विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। फिजियोलॉजिकल लिमिट्स मीन्स हार्ट की लिमिट ये है कि वो 4 to 6 लीटर ब्लड उसने पंप करना है। तो इन 4 to 6 लीटर ब्लड जब तक वो पंप नहीं करेगा, वट एवर द लोड of aorta, it will continue to pump that blood. So atrial pressure या लोड इन्हांस होने से हार्ट पंपिंग डिक्रीज नहीं होगी जब तक कि हार्ट कंप्लीटली 4 to 6 लीटर ब्लड फर्दर आगे ट्रांसफर ना कर दे। Then there come position. In straight position when we are resting, heartbeat is normal.
लेकिन जब हम अपराइट पोजीशन में होते हैं तो ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है, मोर वेनस रिटर्न होता है, और मोर वेनस रिटर्न होने की वजह से हार्ट पंपिंग इन्हांस होती है और हम ये कहते हैं कि हार्ट पंपिंग इंक्रीज हो गई है. Next come emotional state. When there is emotional state, we are depressed. Due to depression, the parasympathetic system is activated and it will produce that same effect which we discussed earlier. It will decrease contraction to about 20 to 30% and this will decrease heart pumping. So these are all extrinsic factors which are affecting heart pumping. Now we will discuss about physiology of peripheral circulation. Peripheral circulation consists of arteries, veins and capillaries which are responsible for flow of blood between heart to other body parts. It has following function: transport of blood, it maintains blood flow distribution, it exchanges blood between blood vessels and tissues, and it helps in storage of blood. Blood is mostly stored in veins because they have large capacity to store blood. Peripheral circulation is further divided into two circulation: systemic circulation and pulmonary circulation. Systemic circulation means the flow of blood between heart to other body organs except that of lungs. Pulmonary circulation is exchange of blood between heart and lungs. So this is all about physiology of peripheral circulation.